Okay. Then, 1 second. So, hello everybody. Can you listen me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, there are 61 participants at the moment. Either we have to wait. Where is the CR? Who is CR? Yes, sir. कितने लोग हैं आपकी क्लास में? सर 70 तकरीबन 73 हैं 74। तो इसमें से कितने प्रेजेंट होते हैं यूजुअली? यूजुअली 60 होते हैं तकरीबन 60। Okay. So, I think then we may start because the people are around 62. And then I will request all of you to mute your microphones. So you may note down the questions, and at the end we have time to discuss those questions, inshallah. So my name is Dr. Muhammad Imran, and I will be teaching you people part of inorganic chemistry. There are different topics in inorganic chemistry, and the topic that I will be discussing in these lectures will be the coordination chemistry. So coordination chemistry is basically a branch of inorganic chemistry that deals with the study of coordination compounds. It is normally considered to be the backbone of inorganic chemistry because there are many applications of these coordination compounds in daily life, and many main concepts of inorganic chemistry are included in the field of coordination chemistry. So we will be discussing mainly the coordination compounds during this class, hopefully every Tuesday at 10 o'clock. And our class will consist of lectures followed by certain discussions. And these lectures will composed of some PowerPoint presentations, also some sharing of slides, etc., and some introductory lecture as well. Today, I will be having an introductory lecture regarding the coordination chemistry. What is coordination chemistry? What is the need of coordination chemistry? Why we are studying this coordination chemistry? And how much this is important for the daily life, industrial life, and how much important it is to inorganic chemistry. How it is important, why it is important to learn coordination chemistry if you want to study the detailed concepts of inorganic chemistry. So when we talk about the inorganic chemistry, that means that basically, just a moment. You have to wait just for 1 minute.
So can everybody see the sharing of slide? स्लाइड जो है ये शेयर हो रही है आपके साथ? नहीं सर। Yes, sir. No, sir. No, sir. Yes, हो sir. रही है। Yes, sir. Yes, sir. हो रही है. हाँ सर हो रहे सर। ओके, अब आप म्यूट कर लें इसको. So that means that the inorganic chemistry is basically a chemistry that deals with the study of inorganic compounds. And when we talk about the inorganic compounds, that means that these are usually those compounds which have no essential carbon member, while as far as organic compounds are concerned, they have carbon as an essential element. So if we leave the carbon and talk about rest of the elements that are almost 117, then it means we have to study the chemistry of these 117 elements when we talk about the inorganic chemistry. यार ये म्यूट कर लेना, आपको कहा भी है तो फिर आप वही काम कर रहे हैं. So inorganic chemistry is basically the branch of chemistry that deals with the study of inorganic compounds, the properties of inorganic compounds, the structures of inorganic compounds, and the applications of inorganic compounds. So that means that we have to talk about different elements and their chemistry in the field of inorganic chemistry. So in order to discuss these 117 elements, it is very difficult to discuss the chemistry because every element has different types of characteristics. For instance, if you talk about the nitrogen, it has different types of oxides. Nimra Jamil. So it has different type of oxide, for example, NO, NO2, N2O5. So it is very difficult to discuss the chemistry of each element. In order to simplify or systematically discuss the chemistry of inorganic compounds, these elements have been arranged systematically in the form of periodic table. And when we talk about the systematic arrangement of periodic table, that means there are 4 blocks of elements. For simplicity, for instance, this one is the S block, this one is the P block, D block element, and F block elements. These S and P block elements are generally known as representative elements because they usually have fixed oxidation state. While these 2 blocks, which are called D and F, they both are basically transition elements. And the main characteristics of transition element, which is different from the representative elements, that is S and P block, is that they possess variable oxidation state. So this is the main difference between the representative elements and the transition elements, that transition elements usually exhibit fixed variable oxidation state. For instance, iron may possess +2 oxidation state, +3 oxidation state, cobalt +2, +3, manganese +2, +5, +7, etc. But this lithium has only +1 oxidation state. Oxygen has -2 oxidation state, aluminium has +3 oxidation state, and they are usually fixed. But in these cases where D and F block elements are concerned, they have variable oxidation state, and this is the reason that they are both categorized as transition element. However, there is another difference, that these D block elements are called outer transition elements, and these F block elements are called inner transition elements.
So the basic introduction of the periodic table before discussing the coordination chemistry is very important because we will be having different examples from this D block element. And D block elements, I have told you, these are called outer transition elements and these are called inner transition elements. We will be having example in our coming lecture from these outer transition elements. We will be discussing the coordination compounds from these elements. So one can say that we will be discussing the coordination chemistry of D chemistry of outer transition element. So what is the main difference between outer transition elements and inner transition elements? The first thing is both are transition elements because they exhibit transitions which are usually lying in visible region. जो इनके अंदर चूंकि ट्रांजिशन का फिनोमेना बहुत कॉमन है, ये कलर शो करते हैं जो कि ट्रांजिशन की वजह से होते हैं, तो इन एलिमेंट्स को मेनली ट्रांजिशन एलिमेंट इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर जो ट्रांजिशंस हैं दे यूजुअली टेक प्लेस इन विजिबल रीजन। इसका कतई तौर पर ये मतलब नहीं है कि एस और पी ब्लॉक के अंदर ट्रांजिशंस नहीं होती। एस और पी के अंदर भी ट्रांजिशंस होती हैं बट दे आर नॉट कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट क्योंकि उनके अंदर यूजुअली जो ट्रांजिशंस होती हैं वो विजिबल रीजन के अंदर नहीं होती, वो हमें नज़र नहीं आती। विजिबल रीजन जो है जो कि ह्यूमन आई को नज़र आ सकता है, वो जो ट्रांजिशंस हैं उनको फिर हम जनरली कैरेक्टराइज करते हैं और वो इन एलिमेंट्स के अंदर होती हैं। तो इस वजह से इन एलिमेंट्स को जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाया जाता है। और ये जो एलिमेंट्स हैं एस और पी के, ये एलिमेंट्स जो हैं दैट डिड नॉट मीन दैट दे डोंट एग्जिबिट ट्रांजिशन एलिमेंट, दे एग्जिबिट ट्रांजिशन एलिमेंट बट यूजुअली नॉट इन द रीजन ऑफ विजिबल लाइट। So this is the main difference. So transition elements, then why they are called outer and these are called inner transition elements? Because they possess d orbital, and remember that d orbital is always outerly penetrated away from the nucleus. It is exposed away from the nucleus. It is outerly penetrated. It is quite away from the nucleus. ये हमेशा न्यूक्लियस से बाहर की तरफ होता है, exposed away होता है। D means diffused. D mean diffused, so that means that is exposed away from the nucleus। और ये जो diffused character है away from the nucleus है, इसी बेस के ऊपर हम इनको कहते हैं कि they are outer transition element because they possess d orbital in the process of filling। और जिनके अंदर भी d orbital in the process of filling होगा तो फिर definitely वो outer transition कहलाएंगे क्योंकि जब d ऑर्बिटल होगा तो d ऑर्बिटल की नेचर यही है कि दैट इज आउटरली पेनिट्रेटेड, दैट इज एक्सपोज्ड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। जबकि ये जो f ऑर्बिटल है, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये भी कलर शो करते हैं बट दे आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज f ऑर्बिटल इज ऑलवेज इनरली पेनिट्रेटेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। ये हमेशा अंदर की तरफ होता है, ये पेनिट्रेशन इसकी जो लोब्स हैं दे आर पेनिट्रेटेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो f ऑर्बिटल इनरली पेनिट्रेटेड है और d ऑर्बिटल जो है ये हमेशा आउटरली पेनिट्रेटेड है। इस वजह से इन दो ब्लॉक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनमें से एक को आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं जिसके अंदर d ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है, और ये जो एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर f ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होगा इनको हम कहेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। सो इन शॉर्ट these are the four main blocks of periodic table, which may include s block where s orbital is in the process of filling, p block where p orbital is in the process of filling. So these s and p both are called representative or normal element, and their main characteristic is that they have fixed valency or usually fixed oxidation state. These two blocks D and F are called transition elements and they are different from normal elements because they exhibit वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये मेन डिफरेंस है दो क्लासिफिकेशन का, एक ट्रांजिशन एलिमेंट्स और एक नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या आप उनको मेन ब्लॉक एलिमेंट्स कहें या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहें। देयर आर डिफरेंट टर्म्स व्हिच आर बीइंग यूज्ड इन द लिटरेचर। तो मेन डिफरेंस जो है वो आपके पास ये आता है कि एक के पास फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, लेकिन जो जर्नल यूजुअली जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ये एलिमेंट शो करते हैं या लेंथ नंबर वगैरह शो करते हैं। तो इनके पास
चूंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये वाला जो ब्लॉक है इसके पास d ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग है, लिहाजा ये आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएंगे और ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएंगे। और ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहलाएंगे क्योंकि इनके अंदर जो ट्रांजिशन का फिनोमेना है दैट यूजुअली टेक प्लेस इन विजिबल रीजन एंड मोस्ट ऑफ देयर साल्ट्स आर कलर्ड इन विजिबल रीजन। जबकि एस और पी ब्लॉक भी ट्रांजिशन शो करते हैं, लेकिन उनकी ट्रांजिशन या तो यूवी रीजन के अंदर होती हैं, आईआर रीजन के अंदर होती हैं, तो वो हमें जो है दिखाई नहीं देती। इस वजह से उनको फिर हम जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं डिक्लेयर करते। So we have come to the point that in periodic table we have 4 blocks and the most favorite one to us is the transition block or the D block elements. We will be discussing the coordination chemistry of outer transition elements or D block element. These S block usually form ionic compounds, P block form covalent compounds, and these form coordinate covalent compounds or coordination compound. ये भी इनकी कैरेक्टरिस्टिक है कि S block वाले ionic compound बनाते हैं यूजुअली, P block वाले यूजुअली जो है आपके पास कोवलेंट कंपाउंड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कार्बन कार्बन का बॉन्ड शेयर होगा, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है, तो ये यूजुअली कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक यानी आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड ये आप ऑलरेडी डिस्कस कर आए हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर। इस क्लास के अंदर जो मेनली हमने एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ने के लिए हम एग्जांपल्स यहाँ से क्यों लेते हैं? व्हाई वी डू नॉट टेक द एग्जांपल फ्रॉम एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, व्हाई वी यूजुअली कंसंट्रेट ऑन द आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, ये बात आपको मैं अंडरस्टैंड हो जाएगी। तो पहली बात तो ये है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब हम पढ़ रहे होंगे तो हमारी मोस्ट ऑफ द एग्जांपल विल बी कमिंग फ्रॉम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। वी विल नॉट बी डिस्कसिंग द एग्जांपल्स फ्रॉम एफ ब्लॉक, पी एंड एस ब्लॉक। आवर कंसंट्रेशन विल बी, तो मेन फोकस ये हुआ कि हमारी ये जो क्लास है इसमें हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री डिस्कस करनी है। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। What are coordination compounds? These are those compounds which have at least one metal as a central metal atom and the ligand which surrounds the central metal ion. तो दो चीज़ों पे coordination compounds मुश्तमिल होते हैं, एक central metal ion और एक surrounding ligand। तो इट मीन्स कि दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए, एक सेंट्रल मेटल होना चाहिए, एक लिगेंड होना चाहिए। तो जो एक पार्ट है सेंट्रल मेटल वो हमारा होगा, इनमें से कोई एक एग्जांपल निकल हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, मैंगनीज। तो इस वजह से इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे जानना इंतहाई ज़रूरी है, बिकॉज द कंपाउंड्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस विल हैव डेफिनेटली वन ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन फ्रॉम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब क्वेश्चन ये है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए ये आउटर डी ब्लॉक या आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को ही क्यों कंसिडर किया गया है? हर बुक के अंदर जहाँ पर आप देखेंगे आपको एग्जांपल जो है जिंक की मिलेगी, कॉपर की मिलेगी, मैंगनीज आयरन की मिलेगी, लेकिन आपको सोडियम या कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह की नहीं मिलेगी। उसकी वजह ये है कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनके पास याद रखें कि जो सबसे अहम करैक्टरिस्टिक है वो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि बाकियों के पास नहीं है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को क्या फ़ायदा होगा? वो ये फ़ायदा हो सकता है कि अगर आपके पास दो मेटल आयन हों, एक Fe2+ और एक Fe3+, तो इन दोनों में से जो स्ट्रांग लीविस एसिड होगा वो Fe3+ होगा, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा इतना उसका लिगेंड की तरफ अट्रैक्शन पावर ज़्यादा होगी। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का फ़ायदा ये हो सकता है। अब मैंगनीज का +7 भी है, कोबाल्ट का +3 भी है, निकल का +4 भी है। तो ये जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से ये जो मेटल आयंस हैं दे बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और गुड एक्सेप्टर। ये एक्सेप्ट करने की सलाहियत इनके पास ज़्यादा है, क्योंकि अगर आयरन 3+ है तो इट मीन्स कि उसको 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इन ऑर्डर टू बी स्टेबल। तो जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा इतना उसकी कैपेसिटी टू अट्रैक्ट दी इलेक्ट्रॉन पेयर
वो बढ़ती जाएगी। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं ये चूंकि गुड लीविस एसिड्स हैं कंपेयर टू एस एंड पी ब्लॉक, इनके पास जो चार्ज है वो ज़्यादा होता है, प्लस चार्ज ज़्यादा होता है, देयरफॉर दे आर मोर गुड कैटायंस फॉर कम्प्लेक्सेस। ये कम्प्लेक्सेस के लिए या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए बेटर कैंडिडेट हैं। तो दिस इज द मेन रीजन कि why we are having an examples always from outer transition element for discussing the coordination compound। क्यों? क्योंकि coordination compound में एक जो पार्ट है वो मेटल आयन का होना चाहिए, और मेटल आयन वो होना चाहिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की सलाहियत ज़्यादा हो, यानी वो लीविस स्ट्रॉन्ग एसिड हो। स्ट्रॉन्ग लीविस एसिड तब हो सकता है जब उसके पास पॉजिटिव चार्ज हायर होगा, और पॉजिटिव चार्ज कब हायर हो सकता है? वो उस वक्त हो सकता है जब आपके पास जो है आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब ये भी एक क्वेश्चन है कि इनके पास ऐसी क्या वजह है कि ये एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं जबकि एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है वो शो नहीं कर सकते। द रीजन इज वेरी सिंपल एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टू नोट कि एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनके पास जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एस ऑर्बिटल के अंदर होता है, और एस ऑर्बिटल आपको पता है कि स्फेरिकल इन शेप है, दैट इज वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, क्लोज होता है न्यूक्लियस के। जब न्यूक्लियस के करीब कोई ऑर्बिटल होगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन, बड़ी सिंपल सी बात है कि निकालना बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। उसके बाद पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं। पी ब्लॉक भी न्यूक्लियस के करीब होता है, न्यूक्लियस के क्लोज है, और पी ब्लॉक से भी इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है। यही वजह है कि वो भी नॉर्मली फिक्स वैलेंसी शो करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट हैं इनके अंदर डी ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है, यानी इनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल के अंदर होता है। तो अगर आउटर मोस्ट डी ऑर्बिटल के अंदर होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? विच आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, यानी जो वैलेंसी का सबब बनते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस के अंदर होगा तो निकालना ज्यादा मुश्किल है, पी के अंदर होगा तो रिलेटिवली उससे कम है, और डी के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन हो यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के अंदर हो, तो अभी हम बात कर चुके हैं कि डी ऑर्बिटल इज आउटरली पेनिट्रेटेड। जब वो आउटरली पेनिट्रेटेड है, एक्सपोज्ड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस है, तो फिर डेफिनेटली न्यूक्लियस की पुल डी के ऊपर कम होगी और वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। यही वजह है कि दीज एलिमेंट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज देयर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन रिजाइड्स इन डी ऑर्बिटल व्हिच इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड इट इज easy to remove the electron from d orbital relative to s and p, and this might be the reason that why outer transition elements exhibit variable oxidation state. And this is the reason, because they exhibit variable oxidation state, they are more better Lewis acid, they are more good electron acceptor compared to s and p, and when they are good Lewis acid and good electron acceptor, that is the reason they are favorite candidate for coordination chemistry. And in every books you will be having examples from outer transition element because they are the best candidate for studying the coordination compounds. तो ये बात हो गई कि हमने जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जिसके बारे में हमने बात की है कि स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसके दो पार्ट हैं, एक सेंट्रल मेटल और एक लिगेंड। और सेंट्रल मेटल यानी पहला पार्ट जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं इंट्रोडक्टरी, वो है उसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक पार्ट, दैट इज द मेटल आयन। और मेटल आयन में से अभी तक हमने ये फैसला किया है टिल नाउ कि वी विल बी हैविंग एग्जांपल फ्रॉम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, बिकॉज उसकी रीजंस मैंने आपको बता दी हैं, क्योंकि दे एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और जब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो दे आर गुड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कंपेयर टू एस एंड पी। और उसकी रीजन भी बता चुका हूँ कि एस ऑर्बिटल जो हैं वो न्यूक्लियस के करीब हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, फिर पी से भी निकालना डिफिकल्ट, और डी जो है ये आउटरली पेनिट्रेटेड है, एक्सपोज्ड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस है, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हैं, तभी तो मैंगनीज 2 भी है, +5 भी है, +7 भी है, क्रोमियम +3 भी है, +6 भी है। तो ये जो ट्रेंड है कि हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल रहे हैं, दिस इज द रीजन वी हैव सिलेक्टेड आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर स्टडीइंग कोऑर्डिनेशन। जी सर, एफ ब्लॉक एलिमेंट से हम क्यों नहीं फिर ले लेते सेंट्रल
अभी आप इस क्वेश्चन को मैंने कहा था कि नोट कर लें, वी विल हैव टाइम एट द एंड। ये बात मैंने अभी आगे करनी है, अभी लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ ना। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट का बता के इसका मैं कंपैरिजन एफ के साथ अभी मैंने करना है। सो दिस इज़ क्वाइट एडवांस क्वेश्चन। मैं डिस्करेज नहीं करता क्वेश्चन को, लेकिन आप क्वेश्चन नोट करके आखिरी 5-10 मिनट तक रखें। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर ना मिले ड्यूरिंग माय क्लास तो आप एंड पे जितने मर्जी क्वेश्चन पूछें। इज इट ओके? Yes, sir. यस सर। तो जो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इसकी हम बात कर रहे थे कि देज आर दोज एलिमेंट्स विच हैव डी आर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग। और ये जब डी आर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग है तो वहाँ पर हमारे पास जो है ये ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब भी हमने डिस्कस करने हैं तो हमने एग्जांपल आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट से इसी वजह से लेनी है क्योंकि दे आर मच बेटर लीवियस एसिड देन ऑल अदर एलिमेंट्स लाइक एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तीनों की बात मैं आपके सामने कर चुका हूँ। एस ब्लॉक जो हैं वो हैं जिनके अंदर एस ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग है, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्वाइट हाई है। पी ब्लॉक की भी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है। डी ऑर्बिटल ही रह जाते हैं जिनके अंदर जो है आउटर इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है एंड दैट इज आउटर, ये शेप है डी ऑर्बिटल की, इट इज एक्सपोज्ड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनके बारे में हम बात कर चुके हैं कि दे आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर जो है एफ ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होगा, यानी कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो एफ ऑर्बिटल के अंदर होगा, ना कि डी के अंदर होगा। तो एफ ऑर्बिटल के अंदर आउटर मोस्ट अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो एफ ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इनरली पेनिट्रेटेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो वो न्यूक्लियस की तरफ जो है उनका झुकाव है वो इनरली पेनिट्रेटेड है। तो एफ ऑर्बिटल से भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्वाइट डिफ़िकल्ट है। जब वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफ़िकल्ट है तो इस वजह से इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं कि इनका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है एफ ऑर्बिटल दैट इज़ इनरली पेनिट्रेटेड, और जब इनरली पेनिट्रेट करेगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट है। और यही वजह है कि वो यूजुअली डू नॉट टेक एग्जांपल्स फ्रॉम एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ये एक कंपैरिजन था एस, पी, डी और एफ का कि वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेफर्ड फॉर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो दो मेन पार्ट हैं वो हमारे सामने आ चुके हैं कि एक मेटल आयन होगा, एक लिगेंड होगा। मेटल आयन में से भी हमने सिलेक्ट कर लिया कि हमारे पास आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होने चाहिए, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट होने चाहिए। अब ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं या जो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनकी आगे फर्दर दो टाइप्स हैं। यानी पहले तो हमने कहा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की दो टाइप्स हैं, एक आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, एक इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो जिनके अंदर डी ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होगा और डी ऑर्बिटल आउटरली पेनिट्रेटेड होता है, इसलिए दे आर गुड लीवियस एसिड। अब ये जो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनकी फर्दर आगे दो टाइप्स हैं। These outer transition elements are classified into typical outer transition elements and non-typical outer transition elements. एक टिपिकल होंगे, एक नॉन टिपिकल होंगे। टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होंगे विच एग्जिबिट टिपिकल करेक्टरिस्टिक्स, और नॉन टिपिकल होंगे जो टिपिकल करेक्टरिस्टिक्स शो नहीं करते। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि टिपिकल करेक्टरिस्टिक कौन सी होती हैं। सबसे पहली है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तमाम एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी है, दे डू नॉट यूज शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जिंक की हमेशा +2 होगी, कैडमियम की +2 होगी, मरकरी की +1 +2 हो सकती है, लेकिन ये जो दो एलिमेंट यूजुअल जो स्टेबल है वो +2 है। अब आप देखें तो ये चूंकि फिक्स्ड वैलेंसी शो कर रहे हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल नहीं है, इसलिए हमने इनको कह दिया कि ये नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और ये टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। टिपिकल करैक्टरिस्टिक याद रखें कि वो करैक्टरिस्टिक है, पहली करैक्टरिस्टिक जो टिपिकल है वो है कि दे एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरी टिपिकल करैक्टरिस्टिक है कलर, कि ये एलिमेंट्स कलर शो करते हैं। जिंक, कैडमियम जो है ये कलर भी नहीं शो करते। तो दैट माइट बी द रीज़न कि दे आर कॉल्ड नॉन टिपिकल एंड दे आर कॉल्ड टिपिकल। तो याद रखें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जब हम बात करेंगे
तो उनमें आगे दो टाइप्स होंगी, टिपिकल और नॉन टिपिकल। टिपिकल वो होंगे जो टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, और टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में दो बड़ी अहम हैं। पहली है कलर और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि फिर इनको जब ये टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं शो करते तो फिर हमने इनको ट्रांजिशन एलिमेंट में क्यों प्लेस किया हुआ है। ये बेसिकली तीसरी प्रॉपर्टी है कम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये चूंकि कम्प्लेक्सेस बनाते हैं विच इज द रिजेंबलिंग प्रॉपर्टी विद अदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इस वजह से हमने इनको सिर्फ एक प्रॉपर्टी की बेस के ऊपर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में रखा हुआ है, डी ब्लॉक में रखा हुआ है। अदरवाइज दे आर नॉन टिपिकल transition element. So due to complex formation they are part of outer transition element, they are part of d block elements, क्योंकि आपको पता है कि एक ब्लॉक के अंदर यूजुअली कैरेक्टरिस्टिक सेम होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, जो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, इसकी फर्दर आगे टाइप्स हैं टिपिकल और नॉन टिपिकल। नॉन टिपिकल जो हैं चांदे के हैं, लेकिन जो टिपिकल हैं वो मेजॉरिटी जो है वो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, बिकॉज दे एग्जिबिट द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक एंड दीज टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर नंबर 1 वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, नंबर 2 कलर्स, और जो तीसरी प्रॉपर्टी है टिपिकल वो है कम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कि ये कम्प्लेक्सेस भी बनाते हैं। तो जो तीसरी प्रॉपर्टी है टिपिकल, सिर्फ वो वाली इनके अंदर मौजूद है। अब इस एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक की वजह से दो चूंकि मौजूद नहीं हैं तो इनको हम नॉन टिपिकल कह रहे हैं, लेकिन फिर भी दे आर पार्ट ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, दे आर पार्ट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स बिकॉज दे फॉर्म कम्प्लेक्सेस। तो कम्प्लेक्सेस जो है इन तमाम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी, और कम्प्लेक्स बनाने के लिए आपको पता है कि लीविस एसिड चाहिए, मेटल आयन चाहिए और लिगेंड चाहिए। कम्प्लेक्स ये सारे बनाते हैं, इस वजह से दे आर आर डी ब्लॉक एलिमेंट, जबकि दो जो टाइप्स होंगी आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वो टिपिकल और ना। सो वी मे कंक्लूड टुडे that when we are discussing the coordination chemistry, study of coordination compound, we will be discussing the coordination chemistry of outer transition elements because they exhibit variable oxidation state compared to S and P and D, F. These outer transition elements are of further two types. Some of them are typical and some of them are non-typical transition elements. We will be discussing the coordination chemistry of both typical and non-typical transition elements. However, typical transition elements are much more compared to the non-typical. Non-typical because they don't exhibit the typical characteristic. Only one of the characteristic has been shown by them, and that is the reason they are part of outer transition element. So this is what we have discussed today, the brief introduction of coordination chemistry, why we are studying it. Please have a question if you जी अब क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं। We have 5 minutes for question. सर नॉन टिपिकल के एग्जांपल्स बता दें। जिंक, कैडमियम, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी +2 रहेगी। सर जी जी बेटा बोले। सर जो लिगेंड्स हैं वो स्पेसिफिकली हम किस ब्लॉक से लेते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाने के लिए? लिगेंड जो हैं वो यूजुअली पी ब्लॉक से, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो। लिगेंड इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए सर। वो बाद में डिस्कस करेंगे। 1B और 2B दोनों नॉन टिपिकल है ना? जी जी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में। सर रेफरेंस के लिए बुक कौन सी यूज करनी है हमने? वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। इट वाज वेरी इंट्रोडक्टरी लेक्चर। सर टिपिकल की एग्जांपल क्या है? टिपिकल की ये सारी है ना, आयरन है, मैंगनीज है, क्रोमियम है, कोबाल्ट है, निकल है। जो भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और कलर शो करते हैं वो टिपिकल है। मेजॉरिटी टिपिकल है। सर नॉन टिपिकल की एक बार रिपीट कर दीजिए। नॉन टिपिकल वो हैं जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, कलर शो नहीं करते, जैसे जिंक है, कैडमियम है। उनके नाम से जाहिर है कि नॉन टिपिकल हैं, यानी टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करेंगे। सर ये जो ग्रुप सेकंड के बी के एलिमेंट है सिर्फ वही नॉन टिपिकल हैं या और भी कोई हैं?
और भी बीच में है, वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में सम ऑफ देम बिकम टिपिकल, सम ऑफ देम बिकम नॉन टिपिकल। लेकिन फिलहाल आप इसको ही ध्यान में रखें कि जो जिंक कैडमियम या वो है, ये साथ साथ मजीद क्लैरिफिकेशन हो जाएगी जब हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। सर आपने बोला कि नॉन टिपिकल कलर शो नहीं करते, तो हम इनको रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं कि हमारे पास पड़े हो कुछ, तो हमने कहना कि इनमें से नॉन टिपिकल कौन सा है, तो उनके लिए तो कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे? क्वालिटेटिव टेस्ट हैं, आप साल्ट एनालिसिस करके आए हुए होंगे, वो हैं मतलब फिजिकल instrumental अपीयरेंस से test। नहीं बता सकते? नहीं अपीयरेंस तो कलर जो नहीं है तो कैसे बताएंगे, नॉन टिपिकल जी है। सही। एनी अदर क्वेश्चन? सर जी, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है आपने कहा आउटरली पेनिट्रेटेड है, ये आउटरली पेनिट्रेटेड क्यों है? मतलब कोई साइज की वजह से या इसकी क्या? डी ऑर्बिटल की जो शेप है, जो ओरिएंटेशन है न्यूक्लियस से, वो दूर होती है ना, इस वजह से। ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन? सो सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Okay, then see you on next Tuesday, inshallah. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज सर। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज सर। Yes, sir.